وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ قرآن عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے، حصہ اول لیول 1، جس میں ہم نے ابتدائی قواعد پڑھنے ہیں، ایلیمنٹری لیول۔ پہلے سبق کا آج تیسرا حصہ ہے۔ آج ہم ضمیر منفصل جو اشاروں کی مدد سے ہم سیکھ رہے ہیں، اس کے جو دہرانے کے طریقے ہیں، 5ویں اور 6ٹھے طریقے سے دہرائیں گے، اور اس کے بعد قرآن کریم میں ان آیات کا اجرا کریں گے، ان کا ترجمہ سیکھیں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی، تو سب سے پہلے ضمیر منفصل۔ تو 5واں طریقہ یہ کہ آج آپ میرے ساتھ آج کے سبق میں عربی الفاظ ضمائر منفصلہ پڑھوں گا، ڈیٹیچ پروناؤن پڑھوں گا اشارہ کرتے ہوئے، اور آپ اسی طریقے سے میرے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے اس کا ترجمہ کیجئے گا۔ جی، شروع کرتے ہیں۔ ہوا، وہ ایک مرد، ہما، وہ دو مرد، ہم، وہ سب مرد، انتا، آپ ایک مرد، انتما، آپ دو مرد، انتم، آپ سب مرد، انا، میں ایک مرد، نحنو۔ ہم سب مرد۔ جی، اب میں اردو الفاظ یعنی ترجمہ کروں گا اور آپ عربی تعریف کریں گے۔ ضمیر منفصل جو عربی کے الفاظ ہیں اسی طریقے سے اشارہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ یہ ہمارا دہرانے کا 6ٹھا طریقہ ہے، تو گویا کہ ایک سبق کو 6 طریقوں سے دہرایا جا سکتا ہے۔ تو اب میں ترجمہ کروں گا، آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اشارہ کرتے ہوئے عربی الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں۔ وہ ایک مرد، ہوا، وہ دو مرد، ہما، وہ سب مرد، ہم، آپ ایک مرد، انتا، آپ دو مرد، انتما، آپ سب مرد، انتم، میں ایک مرد، انا، ہم سب مرد۔ نحنو۔ جی، ضمیر منفصل جو ہم نے مختلف طریقوں سے دہرائی ہے۔ اب ایک مرتبہ اور کہ میں صرف اشارہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا اور اشارہ لازمی کیجیے گا۔ اشارہ کرنا لازمی ہے کیونکہ یہ ہماری مین سٹریم ہے جس کے ذریعے سے ہم نے عربی گرامر بھی سیکھنی ہے اور قرآن مجید کا ترجمہ بھی سیکھنا ہے، لہٰذا اس میں سستی بالکل نہیں کرنی۔ ضمیر منفصل میں صرف اشارہ کروں گا، آپ اشارہ بھی کیجیے گا اور ساتھ بآواز پڑھیے گا۔ ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحنو۔ جی، یہ مختلف انداز سے ہم نے اپنا سبق ضمیر منفصل ڈیٹیچ پروناؤن کو دہرایا ہے، اور کوشش کیجیے گا کیونکہ یہ سبق ہے، اس کو بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے، کیونکہ یہ ضمائر وہ ہیں، پروناؤنز وہ ہیں کہ کوئی ایسا لائن اور سطر قرآن کریم کی نہیں گزرے گی جس میں ضمائر کا استعمال نہ ہوگا، پروناؤن کا استعمال نہیں ہوگا، تو اس لیے کوشش کیجیے گا۔ اب آتے ہیں ہم اجرا کی طرف۔ آپ اپنے پاس سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہمارے پاس آیات ہیں، ہم نے 8 ضمائر پڑھی ہیں مذکر کی، اب ان کا آیات میں استعمال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلی آیت ہے هو الرحمن الرحیم، هو الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کا ترجمہ کریں، سب سے پہلے اس آیت میں جو ضمیر استعمال ہوئی ہے اس کا اشارہ کیجئے گا۔ جی، فرسٹ آپ اشارہ کیجئے گا۔ جی، ضمیر ہے ہوا، ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ وہ ایک مرد، وہ ایک مرد۔ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس کی رحمت وسعت کل شیء، اس کی رحمت پوری دنیا پر ہے، ایک ایک چیز کو عطا کی ہوئی ہے۔ تو میں اور آپ ہر سننے والا، ہم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں اور دعا گو ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت میں لپیٹ لیجئے گا اور اپنی رحمت اور کرم نوازی کیجئے گا۔ جی، دوسری آیت ہے اذ ہما فی الغار، اذ ہما فی الغار۔ جی، ضمیر ہما اس کا اشارہ کیجئے گا، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ وہ دو مرد، وہ دو مرد، بالکل۔ اذ کا معنی جب، ہما وہ دونوں، فی الغار غار میں ہے، فی کا معنی میں، اور غار، غار اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کون مراد ہے اس سے؟ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ کون دونوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے یار غار والمزار، جنہوں نے دنیا میں بھی سب سے پہلے ساتھ دیا اور آج مزار میں بھی ان کے ساتھ ہیں، اور قیامت کے دن
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से जब हिसाब किताब शुरू होगा तो पहला शख्स जो अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने वाला होगा और जिसके हिसाब किताब के लिए पेश किया जाएगा वो खलीफा बिला फस्ल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु है। उनकी इस उम्मत पर बड़े एहसान है और दुनिया तक ही नहीं बल्कि क़यामत के दिन भी इस उम्मत में नहीं पूरी इंसानियत पर उनका ये एक एहसान होगा कि जो अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब पेश होंगे तो उनके आमाल और उनके किरदार उस पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत होगी और अल्लाह का गुस्सा ठंडा होगा। जी तीसरी आयत है हम, ज़मीर हम, उलाइका हुमुल मुमिनून, उलाइका हुमुल मुमिनून। जी हम का इशारा कीजिएगा, तर्जुमा कीजिएगा। वो सब मर्द, वो सब मर्द, बिल्कुल। हम का इशारा थर्ड पर्सन प्लूरल है, जमा के लिए इसलिए 4 उंगलियों से इशारा किया, वो सब मर्द। आयत में कैसे उलाइका ये लोग, हम वो सब, अल मुमिनून ईमान वाले हैं, सहाबा कराम के बारे में था। और इसके बाद आने क़यामत तक के लिए जो भी उम्मती प्यारे सहाबा के तरीके पर और उनको फॉलो करेंगे वो भी ईमान वाले। उलाइका हुमुल मुमिनून, वो सहाबा मयार हक थे, ईमान उनका मयार हक, उनका किरदार कैरेक्टर मयार हक है। अगली आयत है और ज़मीर अंता इस्तेमाल दिखेगा, इन्नमा अंत नदीर, इन्नमा अंत नदीर। जी इशारा कीजिएगा, अंता तर्जुमा कीजिएगा। आप एक मर्द, आप एक मर्द, तर्जुमा करते हैं इन्नमा बेशक, अंता आप, नदीर डराने वाले हैं। नदीर का माना डराने वाला, अक्सर नाम भी रखा जाता है अंता। तो मुखातिब है किसको? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हे मेरे पैगम्बर, इन्नमा अंता नदीर, बेशक आप डराने वाले हैं। और आज कुरान से दूरी कहें या जहालत कहें कि दीन को पढ़ा भी नहीं है, कोशिश भी नहीं की, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बशीर थे ऐसे उनकी सिर्फ नज़ीर भी है। जैसे उनकी ज़िम्मेदारियों में था कि वो खुशखबरी दे कि जो अल्लाह के अहकाम नबी के तरीक़ों को पूरा कर गएगा उसके लिए जन्नत के ना ख़त्म होने वाले इनामात हैं। और साथ डराना भी था कि अगर कोई गफलत में पड़ जाए तो गफलत के लिए ज़रूरी है कि उसको कोई तरहीब की जाए, तो डरावा दिया जाए। तो आप सल्लम की ज़िम्मेदारी थी कि वो डराते भी थे। और सेम उलमा भी, उलमा क्योंकि अंबिया के वारिस हैं, इनकी भी ज़िम्मेदारी है कि जिस तरह नेक अमाल करने पर वो खुशखबरी सुनाएंगे, तो इसी तरह अगर लोग गुनाह की तरफ जाएं और मासियत की तरफ जाएं तो वो उनको डराएंगे भी। लेकिन हमारे यहाँ पढ़े लिखे जो अपने आप को कहने वाले हैं, अगर कब्र, हशर और आने वाले हालात जो कुरान और हदीस में हुए उस पर किताब लिख ली जाए तो कहते हैं कि उलमा को और कोई काम नहीं, बस किताब लिख देते हैं कि मौत का मंजर, और ये नहीं, ये उलमा की ज़िम्मेदारी में। इन्नमा अंत नज़ीर। अगली ज़मीर है अंतुमा और आयत है अंतुमा व मन तबाकुमल गालिबून। अब इस आयत में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अंतुमा, जी इशारा कीजिएगा, क्या माना होगा इसका? आप दो मर्द, आप दो मर्द, अंतुमा आप दो मर्द, मुखातिब है सेकंड पर्सन है, आप दो मर्द। अंतुमा कौन मुखातिब है? आप दोनों। वमन और वो इत्तबा जो इत्तिबा करे, कुमा तुम दोनों की, अल गालिबून वही इंजाम के एतबार से गालिब आएंगे। कौन मुराद है? हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और उनके भाई को कहा कि अल्लाह तबारक कहा कि जाओ फ़िरौन को दावत दो, नहीं माने कोई बात नहीं, लेकिन जाओ तुम अपना काम करो क्योंकि गालिब आप ही आएंगे। अंतुमा आप दोनों, अंतुम जमा की ज़मीर है, फ़हल अंतुम शाकिरून, अंतुम इशारा कीजिएगा, क्या तर्जुमा होगा? आप सब मर्द, आप सब मर्द। फ़हल अंतुम शाकिरून, फ़हल बस क्या, अंतुम आप सब, शाकिरून शुक्र अदा करते हैं। क्या कभी जो अल्लाह तबारक व तआला ने नेक अमाल की तौफीक दी है, कुरान को समझने की, कुरान को पढ़ने की जो तौफीक अता की है उस रब करीम ने, उस रब लम यज़ल ने, तो इस पर अब शुक्र बनता है। हल अंतुम शाकिरून, क्या ये तौफीक जो मिल गई नेकी करने की, और ये अल्लाह तबारक व तआला ने इर्द गिर्द देखते हैं हज़ारों नेमतें जे दी हैं, इस पर शुक्र, इस पर शुक्र है। जी फ़हल अंतुम शाकिरून, अना ज़मीर है, अना मुत्तसिल हम पढ़ चुके हैं, अना ज़मीर। जी वमा अना मिनल मुशरिकीन, अना ज़मीर का इशारा कीजिएगा,
जी, तर्जुमा क्या करेंगे? मैं एक मर्द, मैं एक मर्द, आना अपनी तरफ, वाहिद मुतकल्लिम फर्स्ट वर्ड सुने, वमा और नहीं, आना में, मिनल मुशरिकीन शिर्क करने वालों में से। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना कीजिएगा किसी भी तरह, जैसे कि हम पहले सबक में पढ़ चुके हैं। अगली ज़मीर है हमारे पास नहनु, जी, नहनु अवलियाउकुम, नहनु का इशारा कीजिएगा, क्या तर्जुमा होगा? हम सब मर्द, हम सब मर्द, नहनु हम सब, अवलियाउकुम दोस्त हैं, कुम तुम्हारे। तो जो अल्लाह की मान के चलता है अल्लाह उसका दोस्त है। तो आज का सबक हमारा ज़मीर मुनफसिल का आयात में इजरा था। हमने आयात में उसको पढ़ा, तर्जुमा किया। आप भी कोशिश कीजिएगा जब भी आप कुरान की तिलावत करें, जो ज़मीर आ जाए तो फ़ौरन ज़हन में उसका इशारा करें किस तरफ होगा, फिर उसका तर्जुमा निकालें। तो इस तरीके से करेंगे तो ये सीखने का काम तेज़ से तेज़ तर और जल्द से जल्दी होगा और तेज़ रफ्तारी से होगा। ज़मीर मुनफसिल एक मरतबा दोहराएंगे। मैं अरबी अल्फाज पढ़ूंगा, आप अल्फाज ही पढ़ेंगे और इशारा भी कीजिएगा। मैं इशारा नहीं करूंगा, आपने इशारा करना है। जी, मैं अरबी अल्फाज, आप इशारा भी कीजिएगा और साथ पढ़िएगा। हुआ, हुआ, हुमा, हुमा, हुम, हुम, अंत, अंत, अंतुमा, अंतुमा, अंतुम, अंतुम, अना, अना, नहनु। नहनु। कोशिश कीजिएगा जब तक ये याद ना हो जाए उस वक्त तक दोहराइएगा। अपनी वीडियो को रोक सकते हैं आप, फिर दोहराएं, फिर अपना इम्तिहान लें। आज का सबक हमारा अब आगे हमारे पास एक कुरानी अरबी निसाब की तकमील के बाद अगला हदफ क्या है, हमने सबक शुरू किया है। तो अहदाफ में से ये है कि तिलावत करना, कुरान की तिलावत रोज़ाना कीजिएगा और फिर उस पर जो समझ में आए और जो कुरान का मफ़हूम मुझे और आप तक पहुंच जाए उस पर अमल करना है। और उसके साथ साथ हुकूक हैं कुरान के और फ़राइज़ हैं कि दूसरों को भी दावत दीजिएगा। तो सूरत फातिहा से लेकर आगे हमने चलना है, तदब्बर भी करना है, तफक्कर भी करना है और इसको अपने मामूलात में बदलना है और साहिब ईमान से साहिब कुरान तक का सफ़र जारी रखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का सबक हमारा मुकम्मल हुआ। हमने 8 ज़मीरें मुनफसिल पढ़ी हैं जो कुरान करीम में 4573 मरतबा इस्तेमाल हुई हैं। और आगे आपके पास स्लाइड है, देखिएगा कि इस पहले सबक में हमने कितना जो है पढ़ लिया है और क्या हमारा हदफ है। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।